Hello everyone, this side Sheenam. So today we are going to start with our next topic, contraceptive devices. What do you mean by contraceptive devices? The devices which are used to prevent the pregnancy. Pregnancy is a period of 40 weeks or 280 days, or we can say that 9-month period, which start from fertilization and ends up to the delivery of the baby. Delivery of the baby is known as parturition period. When male and female gamete fuses with each other, it will form zygote. This process is known as fertilization. Fertilization से जो product बनता है उसको हम बोलते हैं zygote. And zygote is a single celled structure. When zygote divides again and again, काफ़ी सारी डिविजन्स करता है, उन डिविजन्स को क्लीवेज बोला जाता है. ठीक है, जैसे एक सेल है वो डिवाइड करके क्या बना रहा है, 2 सेल स्ट्रक्चर बना रहा है. इस लाइन को हम क्लीवेज बोलते हैं. 2 सेल्ड स्टेज, मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड and after the completion of 9 months this zygote will convert into fully grown baby, and this baby will not survive. We cannot say survive. This baby will feel suffocate in the uterus medium and give pressure to the female that now it is a time for delivery. That delivery period is known as parturition period, when baby is delivered out. बट इफ़ कपल डू नॉट वॉन्ट टू हैव अ बेबी, अगर कपल को बेबी की ज़रूरत नहीं है तो हाउ वी कैन प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय यूजिंग सम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. Many contraceptive devices are present here, but we have to discuss about some devices. Like first is barrier method. बैरियर मीन्स जो स्पर्म एंड ओवा को एक दूसरे के साथ मीट ना करने दे, वो क्या हो गया, बैरियर हो गया. तो बैरियर मेथड इंक्लूड्स कॉन्डम्स. दीज आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द प्लांट. जो प्लांट का चिकना सा पदार्थ होता है लेटेक्स ऑफ द प्लांट से ये हम क्या है बनाते हैं. एंड दिस इज यूज्ड बाय द मेल एंड इट इज यूज़र फ्रेंडली मतलब प्राइवेसी है यूज़र को, वो अपने आप इसको यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. नो नीड ऑफ एनी डॉक्टर और नर्स. फाइन. एंड दीज आर द बेस्ट contraceptive devices because they also prevent the user from pregnancy as well as it prevents sexual transmitted diseases. Sexual transmitted diseases are those diseases which occur due to sexual contact with the infected person. Sexual transmitted diseases includes AIDS, syphilis and gonorrhea. 3 diseases are there. Syphilis and gonorrhea are infected by bacteria and AIDS is caused by virus. एड्स का हमारे पास कोई भी सोल्यूशन या फिर कोई भी क्योर नहीं है, बट सिफिलिस एंड गनोरिया को हम क्या है क्योर कर सकते हैं. ये तीनों डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं इफ़ अ पर्सन विल डू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. बट इफ़ पर्सन विल डू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बाय वियरिंग कॉन्डम्स देन इट विल प्रिवेंट द प्रेगनेंसी एज वेल एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़. कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को होने से नहीं बचाती एक्सेप्ट दिस मेथड. फाइन. अच्छा, बैरियर मेथड इंक्लूड्स दिस वन एंड Femidoms also. Femidoms are known as female condoms which are worn by the females to prevent the sexual transmitted diseases as well as the pregnancy. Next contraceptive device is oral pills. Oral pills are some kind of tablets made up of hormones known as estrogen and progesterone.
These hormones are added in the tablets and taken by the woman to prevent the pregnancy. When women took these kind of pills, then it will cause some kind of side effects because hormonal level will increase in the body, but these hormones will sometime prevent the ovulation या फिर implantation and female को क्या है pregnant होने से रोक लेती है. तो oral pills में हमारे पास example आ जाती है सहेली pills. इन पिल्स का कुछ ड्यूरेशन होता है, पूरा मंथ लेनी है या फिर वंस अ वीक पिल, एक वीक में एक बार लेनी है. ये सारे इनके क्या है, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं इनटेक करने के. तो इन पिल्स को अपने आप नहीं लेना चाहिए. इट शुड बी टेकन विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर बिकॉज इट विल कॉज सम साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट टाइप इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, IUD. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड किन डिवाइसेस को माना गया है, IUDs को. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUD? इट इज़ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. नेम से ही पता चल रहा है. दीज आर द डिवाइसेस विच आर इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस, जिनको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कॉपर टी, जिसको हम कॉप-टी भी बोल देते हैं. ठीक है, कॉपर टी. ये कॉपर की बनी हुई एक तार जैसा स्ट्रक्चर है जो टी शेप्ड में ऐसे बना हुआ है. ठीक है, कॉपर से बना हुआ है इसको. बट इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली तो है, बट इट विल नॉट गिव प्राइवेसी टू यूज़र बिकॉज इसको खुद फीमेल अपनी यूट्रस में इंसर्ट नहीं कर सकती. इसको इंसर्ट करने के लिए स्पेशल नर्स या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है. तो डॉक्टर या नर्स क्या है, इसको फीमेल की यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं. एंड जब स्पर्म एंटर करता है यूट्रस में तो ये कॉपर टी अपने कॉपर आयंस रिलीज करने लग जाती है एंड स्पर्म को किल कर देती है. तो हम कह सकते हैं इसका क्या एक्शन है, स्पर्मिसाइडल एक्शन. ये स्पर्म्स को क्या कर देती है, किल कर देती है. ठीक है, अगर स्पर्म्स किल हो जाएंगे तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो इट विल ऑल्सो प्रिवेंट प्रेगनेंसी. अब ये कॉपर टी कितने टाइम के लिए, 3 to 5 years तो बिल्कुल सेफ है. वुमेन विल नॉट बी प्रेग्नेंट. अच्छा, बट अगर वुमेन वांट टू बी प्रेग्नेंट तो वो इसको निकलवा भी सकती है. सारी डिवाइसेस हमारे पास ऐसी हैं जो क्या है, मतलब कि रीयूजेबल है. हम चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं चाहे तो हटवा भी सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉपर टी. नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आ गया सर्जिकल मेथड. इट विल कम इन योर एग्जाम ऑल्सो. सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में हमें क्या है, सर्जरी करवानी पड़ेगी. हमारे मेल्स के पास ट्यूब्स होती हैं जिनको हम वास डिफरेंस बोलते हैं, स्पर्म डक्ट बोलते हैं. एंड फीमेल के पास ट्यूब्स होते हैं जिनको हम फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं. ठीक है, अगर जो वास डिफरेंस है उसको हम कट कर दे, डॉक्टर हमने उसको कट कर दिया जाए एंड उसको थ्रेड के साथ टाई अप कर दिया जाए. ठीक है, तो जो स्पर्म्स है वो क्या बाहर नहीं निकल पाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया, जिसमें क्या हो गया, जिसको बोला जाता है कट करके थ्रेड के साथ लाइगेट कर दिया. आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो. एंड इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, वेसिक्टोमी. ठीक है, इसमें क्या होगा, स्पर्म्स विल नॉट रिलीज आउट. नाउ योर क्वेश्चन विल बी, मैम मतलब कुछ भी रिलीज नहीं होगा, नो नथिंग विल बी इजैकुलेटेड, सीमन विल बी रिलीज्ड आउट ना, दैट लिक्विड, बट दैट सीमन विल नॉट कंटेन स्पर्म्स. ठीक है, इन द फेलोपियन ट्यूब वाले केस में क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबिक्टोमी. ट्यूब्स को कट करवा देते हैं. जब ट्यूब्स कट हो जाएंगी तो फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा जहाँ पे एग है. तो उसको भी क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे एंड थ्रेड के साथ लाइगेट कर देंगे. बाकी सब कुछ फीमेल में सही चलेगा, हार्मोन्स भी बनेंगे, मेंस्ट्रुएशन भी होगा, जस्ट प्रेगनेंसी विल नॉट टेक प्लेस. लेट मी शो यू द डायग्राम. So this is the diagram of vasectomy and this is the diagram of tubectomy. Here it is a male reproductive system where vas difference is cut and it ligate with the thread. ligate मतलब जोड़ना, दोनों तरफ से vas difference को कट करके टाई कर दिया. एंड इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया सो दैट स्पर्म अंदर एंटर कर ही ना पाए. ठीक है, एंड उसको क्या है, टाई कर दिया. सो दीज आर द सर्जिकल मेथड्स एंड इनको हम क्या बोल देते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी बोल सकते हैं. बट इनको भी हम दोबारा से क्या ठीक करवा सकते हैं. अगर एक बार कट करवा दिए तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकता. लेट मी शो यू. दीज आर द बैरियर मेथड्स, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स.
oral contraceptive pills. This is copper tea. Fine. Okay, thanks for watching. If any doubt is there, you can ask.